सभी को नमस्कार। आज आप सभी को पता है जो इतने सालों से और इतने वक्त से जो इंतज़ार था वो आज अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट रूल्स 2026 has been duly submitted to the government, to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh this morning. So we want to just to inform the public and through you that this has been submitted to the government. So IPSAP expresses its appreciation to the state government and the High Power Committee for undertaking extensive consultation with various stakeholders and for facilitating a democratic, transparent, and participatory process in examining issues relating to the implementation of the Act and the framing of the rules thereunder. You know that the mandate of the High Power Committee was confined to matters relating to the implementation of the Act and the framing of the rules and did not extend to examining the validity or continuation of the parent legislation thereof. So, with the consultative process now concluded, the report has duly been submitted, and IPSAP expects that the state government to take appropriate steps within a reasonable time frame to consider the recommendations and bring the rules into force in accordance with the law. The society hopes that the government will act expeditiously in fulfilling its constitutional and statutory obligations. IPSAP shall continue to closely monitor the progress of implementation and, if necessary, pursue appropriate legal remedies available under law to ensure compliance with the mandate of the Honorable Guwahati High Court and the applicable statutory framework. It is pertinent to note that throughout the proceedings before the Honorable High Court, there has been, as you know, the Arunachal Christian Forum did not oppose the framing of the rules under the AFRA. The issue of framing the rules remained uncontested before the court. In this context, statements issued at the concluding stage of the consultative process regarding the framing of the rules are both surprising and regrettable, which IPSAP feels that in the fag end of the drafting of the rules, this has come out. But it is unfortunate. However, IPSAP is of the considered view that the state government has throughout the process extended adequate opportunities to all stakeholders and has made sincere efforts to hear and consider their concerns. Meaningful participation and constructive engagement by all the stakeholders and strengthen the democratic consultation and help promote mutual understanding and consensus building. The society also rejects the perception being promoted in certain quarters that the framing of rules under AFRA is directed against any particular religion. ये आप गौर करिए, this rule is not against any religion or religious community. Such assertions are misleading and unsupported by the legal and factual position. The framing of rules is a statutory requirement intended to facilitate the effective implementation of an existing law enacted by the legislature. Once notified, the rules will be a public document accessible to all the citizens, thereby promoting transparency, accountability, and informed public discourse. Furthermore, it is recognized that no set of rules is immutable. Like all forms of subordinate legislation, the rules may be reviewed, amended, refined, or modified by the government from time to time in accordance with constitutional principles, public interest, changing circumstances, and the objective of ensuring peaceful coexistence among all communities of the state. At this advanced stage of the process, the efforts to delay or obstruct the notification of the rules through public pressure or confrontational approaches may not be conducive to the spirit of democratic consultation and
constructive dialogue. Democratic societies function through constitutional procedures, legal processes, and institutional engagement, which remain the most appropriate avenues for addressing differences of opinion. IPSAP reiterates its unwavering commitment to constitutional values, indigenous rights, religious freedom, social harmony, and peaceful coexistence among all communities of Arunachal Pradesh. The society remains hopeful that all stakeholders will continue to engage in constructive dialogue and uphold mutual respect while allowing the government to discharge its lawful responsibilities in accordance with the constitutional and the laws of the land. So, thank you very much. And therefore, the IPSAP is the opinion of the IPSAP. ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे अरुणाचल के जितने भी वासी हैं उनको एक मिसकोट किया गया है और उनको एक मिस इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि जो अफरा एक्ट है और अफरा की अगर रूल जब फ्रेम करेंगे ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए ही है और दूसरा मजहब को वो दबाने के लिए है, लेकिन वैसा नहीं है. दिस रिलीजन इज फॉर ऑल रिलीजियस फॉलोअर्स, रिलीजन्स ऑफ द स्टेट, whether it is a Buddhist, whether it is a Hindu, whether it is a followers of the indigenous believers, or whether it is Islam, or even whether it is a Christian. So therefore it is not against any religion. मैं इस रूल की जो फ्रेमवर्क है और इस एक्ट की जो फ्रेमवर्क है इसमें मैं ये गौर करना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज हमारे पूरा अरुणाचल में ये जाए कि अफरा इज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, नंबर वन, एंड द रूल्स व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड, it is not against any religious followers or against any religious institutions. It is for every religious followers, it is for every religious institutions, and it is for coexistence amongst the people of Arunachal Pradesh who are following different sects of religions as on today. Thank you very much. Any questions and queries? उनके जो जितने भी मेंबरान हैं, उनके जो अथॉरिटीज़ है, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेंगे कि यू आर ऑल लर्नड पीपल, यू आर ऑल नॉलेजेबल पीपल, यू हैव, आपने अफरा का जो एक्ट जो है उनको आपने पढ़े हैं और एक्ट के ऊपर में हमको रूल फ्रेम करना है. उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि ये किसी मजहब वाले का अगेंस्ट में ऐसा रूल फ्रेम करो बोल के. ये समझना बहुत ज़रूरी है. और हमारे जितने भी अरुणाचल के वासी है जो दूसरे धर्म को जो अपनाया है, उनके माइंड में ये डेवलप किया गया है, ये इनपुट दिया गया है कि इट इज अगेंस्ट देयर रिलीजन. देयरफॉर इसको करेक्ट करने के लिए हम सभी को मेहनत करना पड़ेगा और मीडिया के माध्यम से ये मैसेज क्लियरली जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक रिलीजन को प्रेशराइज करने के लिए, उनको टार्निश करने के लिए और उनका अगेंस्ट में है बोल के ऐसा नहीं है. ये शायद अरुणाचल के बहुत दूर दराज के जो अरुणाचल हमारे अपने वासी हैं उनको पता भी नहीं है किसी को. मेरा अपना तजुर्बा भी है, क्योंकि मैं जब गांव में दूर दराज में मैं गया तो उनसे जो मेरे भी काफ़ी रिलेटिव्स है जो क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, उनको जब पूछा गया उनको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि आपका जो अफरा जो है वो हमारा रिलीजन का अगेंस्ट में है. हमने बताया एक्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है. दिस इज टू प्रिवेंट एंड ऑल रिलीजन फ्रॉम एनी कन्वर्सन, कोअर्शन, फ्रॉडुलेंट मींस ऑफ कन्वर्सन. तो सोर्स से पता चलेगा कि एक मेंबर से अटेंड नहीं किया बोले तो इसको लेके, क्योंकि जैसे कि आप बोले कि कोई भी रिलीजन का अगेंस्ट नहीं है, सीएम पेमा खांडू सर भी ऐसे बोलते हैं, तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को क्या आप लोग साइडलाइन कर देंगे या फिर नहीं? क्योंकि मीटिंग अटेंड नहीं किए. अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम तो अटेंड किए हैं और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मेंबर है. हमारा कितना है अरुणाचल में, कितना इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स है. आप ईस्ट से वेस्ट जाइए, ये एक जो बुद्धिज्म है वो तो
मोर देन 2000-3000 ईयर ओल्ड रिलीजन है, और अपना यहाँ पे भी इंडिजिनस बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है। लेकिन जो इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स लोग हैं, अगर आप लोंगडिंग में जाइए, आप तिराप में देखिए, चांगलांग में देखिए, और अपना सेंट्रल बेल्ट, सियांग बेल्ट, अर्लियर सियांग बेल्ट, या यहाँ पे सुबनसिरी बेल्ट है, अपना कामिंग बेल्ट है, वहाँ पे कितने रिलीजियस फॉलोअर्स है। उनका एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, और वो इप्सा। उसी तरह क्रिश्चियन में भी बहुत सारे डिनोमिनेशंस है, बहुत सारे सेक्ट्स है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था एसीए। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग का तरफ से क्लैरिटी होना चाहिए। क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव वाज देयर, इंडिजिनस रिप्रेजेंटेटिव वाज फ्रॉम द इप्सा, और उसी तरह जो बुद्धिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी थे, उसी तरह सभी रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर। तो इट इज नॉट गुड। अगर मैं जब इच्छा अनुसार गया हूं जहां पे अल्लाह अकबर की स्लोगन लगता है, तो हमें भी तो करना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई क्रिश्चियन के प्रोग्राम्स अगर है, तो हमारे इंडिजिनस वाले वहां जाते हैं, तो वहां पे जो भी स्लोगन्स होता है वी पार्टिसिपेट, क्योंकि वी ऑनर एंड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ सच कम्युनिटीज। अगर हमारा ही भारतवर्ष के लोग, भारतवासी, जब अगर कोई जय श्री राम का नारा जब लगाएं, हम क्यों नहीं लगाएं? अगर लगाएं तो उसमें क्या हर्ज है? और वो भी अपना भारतवर्ष का रिलीजन है, अपनी ही धर्म को जब स्लोगन होते हैं तो हमको करना अनिवार्य है मेरे हिसाब में, और ये होना भी चाहिए। दूसरी बात कि हमने जो अब्राह्मणिकल रिलीजन है उस पे भी तो हमने नारा लगाया। नारा लगाने में हमारे लिए कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब्राह्मणिकल रिलीजन हमारे भारतवर्ष के रिलीजन के ऊपर वो उनका जो कमेंट है कभी कभी बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज रियल सेक्युलरिज्म, यही है रियल सेक्युलरिज्म। क्या लगता है इससे मतलब इंडिजिनियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में भी इफेक्ट नहीं, क्यों कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा वही क्वेश्चन को, क्योंकि लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी हैं और तारीफ करने वाले लोग भी हर जगह में हैं। शायद आप लोग को जो ग्रुप जो दिल्ली में गया था हाल में, उसमें कुछ लोग जय श्री राम लगाया, तो जरूरत पड़ेगा तो दूसरा प्रोग्राम में उसका भी नारा लगा सके, इसमें कोई तो हर्ज नहीं है ना? आप बता सकते हैं उन लोगों को, जवाब दे सकते हैं कि हाँ आप बोल रहे हैं कि हम जय श्री राम लगाया तो आपको तकलीफ हुआ, हम जय यीशु, जय अल्लाह, जय भगवान बुद्ध भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो जय यीशु जय अल्लाह तो उनका प्रोग्राम में होंगे ना। हाँ, स्पेसिफिक लोकेशन को देखते हुए आप लोगों ने किया ना? हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम जब अपना प्रोग्राम में अतुर्तो अनेदोनी बोलते हैं, तो हमारा भारतवर्ष के रिलीजियस फॉलोअर, रिलीजन वाले, वो हमारे साथ नारा लगाते हैं। वो कौन सी बड़ी बात है, नारा लगाते हैं। तो एक चीज है डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग जो सेक्युलर फैब्रिक का बात करते हैं, तो इससे तो कोई इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म का, सेक्युलर फैब्रिक की को ही जोर देते हैं। सर, आपने उसका क्वेश्चन आंसर दिया ही नहीं, जो एफआईआर आपका एफआईआर जिसके ऊपर में एफआईआर लगाया वो हमारा एजीएस है, यहीं पे बैठा हुआ है, आप लोग उसको फोकस भी कर सकते हैं। हाँ, वो ये जनजाति सुरक्षा मंच का वो हमारा कोऑर्डिनेटर रहा है, और हमने अपना कार्यकर्ता को उसमें हमने उनको दिया है करने के लिए। इप्साप का ही एजीएस है, उनके ऊपर में एफआईआर लॉज किया है, और लॉज भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी नहीं ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स यूनियन का, एनएसयूआई का उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी आना तो बहुत दुख की बात है। लेकिन इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस।
नंबर को कम करने के लिए या नंबर को ज्यादा बढ़ाने के लिए हम ये आफरा का डिमांड नहीं किया है। जो हमको अपनी रीति रिवाज, अपने रिलीजन को छोड़ के गया है, तो उनको मैं वापस करवाने के लिए ये रूल फ्रेम नहीं किया है। लेकिन जो इच्छुक होकर इंडिपेंडेंटली अगर वो वापस आते हैं, घर वापसी भी करते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत। और लेकिन इसको कम करने के लिए हम ये आफरा का रूल्स लागू कर रहा है, ये तो बहुत ये ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तमाम अरुणाचल वासियों को आपका माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि ये रूल्स एकदम डीप कंसल्टेशन के बाद हुआ है। बहुत सारा उसमें रूल में चेंजेस भी हुआ है। हमारा ऑनरेबल मेंबर्स, स्पेशली अपना ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बालो राजा जी, उनका भी बहुत सारे इनपुट्स है और उन्होंने भी बहुत सारे लोकल एमएलएज, क्रिश्चियन एमएलए से कंसल्टेशन करते हुए उनका सजेशंस दिया है। इन सजेशंस को इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, और उसमें ड्राफ्ट रूल्स जो बनाया उनका जो इनपुट्स था उसको भी लिया गया है उसमें। सो डेफिनेटली इट इज द रूल इज ए पैन अरुणाचल रिलीजियस रूल, और मैं अपने क्रिश्चियन भाई और अन्य मजहबी भाइयों को भी, बहनों को यही प्रार्थना करता हूं कि आप आफरा रूल को प्रॉपरली पढ़िए। आफरा जो एक्ट है इसको प्रॉपरली पढ़िए। अभी जब सबमिट हो गया है तो ये पब्लिक डोमेन में रहेंगे और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और इसको अगर चेंज भी करना है तो हमने कहा है ना, these are not immutable, these are all, it can be mutated, no problem at all, through various constitutional means and procedures it can be। तो यही रिक्वेस्ट तमाम अरुणाचल वासियों को, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये किसी मजहब को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। ये एक रूल है जो सभी धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और स्पेशली फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ कन्वर्जन को रोकथाम के लिए है। तो ये किसी भी रिलीजन का हो सकता है।